substances. Yesterday we were discussing about that we were separating substances by fractional distillation. And I told you that you were asking कि अगर देखो ethanol सारा चला गया है तो we know कि यहाँ पे सारा water ही है. But I said that we have to perform distillation because the water over here might be impure. And when we are using these separating techniques like fractional distillation or chromatography, we make sure that we are collecting pure substances. So that's why we were using fractional distillation because we needed pure water. So firstly, we're going to discuss about purity of a substance. A substance is pure if it has a fixed melting and boiling point. It's pure if it has a fixed melting and boiling point. If I'm talking about boiling point, if I'm talking about water, if my water exactly melts at 0 degrees Celsius, it's pure. If it melts below zero, for instance, on -2 degrees Celsius or -3 degrees Celsius, that's not going to be pure water. So can you tell me that seawater, is it going to be pure or impure? Impure. Impure. So is it going to melt at zero or below zero or above zero? Above. No, below. Because I'm writing another point. I knew कि अभी आपको ये नहीं पता होगा. Impurity. Whenever you have impurity, learn this. Impurity decreases your melting point, decreases the melting point. So now tell me, is it gonna melt above zero or below zero? Below. Seawater. Below zero because it's impure and it increases your boiling point. Seawater is gonna boil at increases boiling point. So if you have impure substance, it's going to melt below its melting point and it's going to boil above its boiling point. So if I say pure water boils at 100 degrees Celsius, at what temperature do you expect seawater is going to boil? Be quick. Boil. It's Yes. gonna be higher than 100. Yeah, it may be 105, 106. It depends on the type of impurity and the concentration of impurity, the boiling point. अगर बहुत ज़्यादा impurity है, so it's going to be a lot higher. अगर कम impurity है, तो it's going to be like a little less. 100 से थोड़ा ही ऊपर होगा. So that's what impurity does. It changes your melting and boiling point. But pure substances, it is kind of, you can say, you can recognize your pure substances by their melting point and boiling point. They'll have fixed melting point and fixed boiling point if you have a pure substance. So if you have pure copper, that's exactly going to melt at 1085 degrees Celsius. If you have impure copper, is it going to melt above 1085 or below 1085? Below. Below. Very good. Below. You need to understand that it will decrease the melting points. It's gonna melt below 1085. Okay, so if you have, for instance, I say you have oxygen gas which melts at -218.8. So if I have impure oxygen, at what temperature do you expect it to melt? Higher than that. No, no, no. Below. Lower, Below, lower, sorry, below. sorry. You have to read this, take a Below. screenshot of this. Impurity decreases the melting point, increases the boiling point. So, for instance, I say diamond boils at 6000 degrees Celsius. 6000 degrees Celsius. If I have red diamond, impure diamond, at what temperature do you expect it to boil? Higher Higher than than 6,000. 6,000. Higher than 6000. तो बस impurity के लिए एक बात याद रखना, अगर कोई भी चीज़ impure हो जाएगी उसका melting point जो है वो decrease होगा और boiling point increase होगा. और अगर हमें किसी चीज़ की प्योरिटी चेक करनी हुई चीज़ प्योर है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होएगा, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होएगा. ठीक है. नाउ यू गाइज वर नॉट अंडरस्टैंडिंग क्रोमेटोग्राफी, राइट? नहीं समझ आ रही थी आप लोगों को?
Yes. Okay, Yes. chromatography is the easiest thing, I guess, in the entire separating techniques. Extremely easy. आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी. ठीक है? For instance, I say कि मेरे पास एक green color की ink है. This is my green ink. And I want to check that what kind of substances are present in this green ink. ठीक है? I want to check what kind of substances are present in my green ink. This is my green ink. So when I want to check what's present inside, I want to separate all the substances. Listen to me carefully. 5 मिनट में हो जाएगा. बहुत easy अगर आप गौर से सुनोगे. अगर आप देखना चाहते हो कि किसी चीज़ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आई डोंट नो व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस ग्रीन इंक, आई वांट टू चेक इट. सो I want to separate all the substances. अभी हम separating techniques ही पर हैं. I want to separate all the substances that are present in it. So I'll use chromatography. Now I have orange juice, for instance. Orange juice should be with this color. Sorry, इस कलर का होता नहीं है, बट दिस इज माई ऑरेंज जूस एंड आई बिलोंग टू द फूड अथॉरिटी. ठीक है? आई वांट टू चेक दैट व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, आई वांट टू चेक कि यहाँ पे कोई इलीगल सब्सटेंसेस तो नहीं डले हुए इस ऑरेंज जूस में विच मेक इट हार्मफुल. आई वांट टू चेक व्हाट्स प्रेजेंट inside this orange juice. I need to separate all the substances present inside my orange juice. So whenever I need to separate the substances that are present in something, I want to check कि इसमें क्या क्या present है. तो मैं यूज करती हूँ chromatography. So chromatography is a separating technique. It's used to separate out the substances. Now, how do we use it? Okay, the first step of chromatography is to take a simple chromatography paper or a filter paper. आप एक simple filter paper लेते हो. Easy steps हैं, बहुत easy है. आप इसको दिमाग में visualize करो. मैंने एक simple paper लिया. ठीक है? सिंपल पेपर लिया, उस पर मैंने अपनी पेंसिल से अभी मैं बताऊंगी पेंसिल से क्यों. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैंने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है? एक पेपर लिया, उस पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दी. अभी तक कोई मसला? पेपर पे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दी. अब मैंने क्या किया, जिस चीज़ को मैंने चेक करना था, अभी मैंने चेक करना था अपनी इंक को. आई ऑलवेज यूज टू राइट विद माई इंक इन एग्जाम, और हमेशा मैं चेक करना चाहती थी वट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन माई इंक. आई वॉन्टेड टू सेपरेट आउट ऑल द सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन माई इंक. तो मैंने एक ड्रॉप इंक का अपने इस पेंसिल से ड्रॉ हुई हुई लाइन के ऊपर डाल दिया. ठीक है? इसके ऊपर इंक डाल दी. अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैंने एक जार लिया. उस जार में अपना जो मेरा पेपर था, जिसके ऊपर मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी, पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से, उसके ऊपर एक ड्रॉप जो इंक डाला हुआ था उसको मैंने उस जार के अंदर डाल दिया. और जार में मेरे पास नीचे एक लिक्विड था. अब हमेशा याद रखना, द लिक्विड दैट वी यूज द लिक्विड दैट वी यूज इन द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज ऑलवेज द लिक्विड इन विच दिस स्पॉट, जो भी चीज़ की हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, जिस चीज़ में हमने चेक करना है कि कौन कौन सी डाइस प्रेजेंट है, कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं इस ड्रॉप ऑफ इंक में, वो जो लिक्विड होता है ना, इट्स ऑलवेज गonna डिजोल्व दिस थिंग. तो कोई ऐसा लिक्विड लेना है जिसमें ये चीज़ डिजोल्व हो जाए. फॉर इंस्टेंस मैं NaCl में चेक करना चाह रही हूँ क्या क्या डाइस प्रेजेंट है, फॉर इंस्टेंस. तो मैं नीचे क्या लूंगी, ये लिक्विड में क्या लूंगी, व्हाट्स गोना बी माई Water. सॉल्वेंट? वाटर, बिकॉज आई नो कि NaCl वाटर में सॉलेबल है. मुझे हमेशा कोई ऐसा लिक्विड नीचे लेना है जिसमें ये वाला डाई सॉलेबल हो. अभी तक समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? Yes. पेपर पे डाई लगाया, पेंसिल से लाइन लगाई, ऊपर डाई लगाया, डाई को मैंने इस जार में, आई पुट द डाई with the on the paper inside this jar. I took a liquid below the liquid. There was a restriction कि ये liquid हमेशा ये डाई हमेशा इस लिक्विड में डिजोल्व होना चाहिए, सॉल्युबल होने चाहिए एक दूसरे में. ठीक है? उसके बाद आई अलाउड इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम. व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर 1 hour आई केम बैक एंड आई सॉ कि all the dyes that were present inside my ink separated themselves. I didn't do anything. And I saw that ये सारे 3 स्पॉट्स मेरे पास आ गए. सो आई न्यू कि मेरी इस इंक में ये 3 तरह के डाइस प्रेजेंट हैं. द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन माई क्रोमेटोग्राफी पेपर टोल्ड मी दैट देयर आर 3 type of dyes present in this ink. So is this ink a pure substance? No, it's not pure. It has 3 kind of different substances that are present inside it, right? अब ये Yes. सब कुछ हुआ कैसे, अब ये सेपरेशन हुई कैसे, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. हाउ डिड दिस सेपरेशन अकर? व्हाट हैपेंड वाज,
अगर आपके फॉर इंस्टेंस आपके टेबल पे यू स्पिल सम वाटर and you just take a tissue paper and you touch one corner of the tissue paper with with the water you have spilled. Is the water going to travel up the tissue paper by itself? Yes. Yes, Yes. it's going to travel. Water खुद ही टिश्यू पेपर के ऊपर ट्रैवल करता जाएगा। और अब एक और चीज़ इमेजिन करो, इफ़ यू हैव अ स्पॉट ऑफ इंक ऑन योर टिश्यू पेपर and you just touch one corner of your tissue paper with the water, is that uh, drop of ink also going to travel up with the water and it's going to, smudge all over your tissue paper? Yes. Yes. You understand it? कि अब इसमें भी यही हो रहा है, ये सॉल्वेंट जो नीचे है इट्स गोना ट्रैवल अप। जैसे टिश्यू पेपर, अगर आप साइड पे कोई वाटर है, आप उसके ऊपर टिश्यू पेपर का एक कॉर्नर रखो, पूरा वाटर खुद ही टिश्यू पेपर के ऊपर ट्रैवल होगा। इसी तरह ये आपके पास जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, नीचे सॉल्वेंट है, ये खुद ही इसके ऊपर ट्रैवल होगा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपकी बेस लाइन है ना, विच यू हैव ड्रॉन विद पेंसिल, इट्स कॉल्ड अ बेस लाइन। लेट्स लेबल इट आउट। दिस इज ए बेस लाइन। दिस बेस लाइन शुड ऑलवेज बी अबाउट 1 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ योर सॉल्वेंट। ये आपके सॉल्वेंट का लेवल है, इसको 1 सेंटीमीटर अबव रखना है। क्यों अबव रखना है? ताकि देखो, मैंने क्या बताया था, ये जो सॉल्वेंट है इसमें ये सॉल्युबल है कि नहीं, ये स्पॉट? It is. इट इज सॉल्युबल। तो अगर मैं यहाँ तक सॉल्वेंट का लेवल ले लूँ तो ये स्पॉट तो सारा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, स्पॉट तो रहेगा ही नहीं, राइट? Yes. Yes. तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा लेवल नीचे हो ताकि ये जो सॉल्वेंट है ये ऊपर ट्रैवल करे। और जब ये ऊपर ट्रैवल करे तो इसके साथ ये जो इंक का स्पॉट है ये भी ऊपर ट्रैवल करेगा। और जब ये इंक का स्पॉट ऊपर ट्रैवल करेगा तो ओवर टाइम इसमें जितने भी डिफरेंट डाइज हैं वो खुद ही सेपरेट आउट होते जाएंगे। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सेपरेट आउट कैसे हो गए, है ना? इंक तो ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो फिर ये डाइस कैसे डिफरेंट पोजीशंस पे आ रहे हैं जो इंक के अंदर प्रेजेंट है? अब मैं आपको ये पॉइंट्स लिखवाऊंगी भी जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर आप खुद भी ये लिख लें। All the dyes that are present in this black ink, all the dyes that are present in this black ink have different solubilities in this solvent. कोई डाई ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कोई डाई कम सॉल्युबल होगा। तो जो डाई ज़्यादा सॉल्वेंट है वो ज़्यादा ऊपर ट्रैवल कर लेगा, और जो डाई कम सॉल्युबल है वो नीचे ही रहेगा। इसी तरह ऑन द बेसिस कि उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज हैं, ये है तो एक ही इंक, बट इसमें जो 3 डाइज हैं, 1 डाई, 2 डाई, 3 डाई, ऑल दीज 3 डाइज दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन दिस सॉल्वेंट। और जब ये सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करेगा तो जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो ज़्यादा ऊपर तक उसको ले जाएगा, और जो कम सॉल्युबल है वो नीचे रह जाएगा। और इसी तरह मेरी इंक में जितने डाइस प्रेजेंट हैं वो 1 2 3 वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा व्हाट वाज प्रेजेंट इनसाइड माय इंक। ठीक है? अब दूसरी बात, एक और मैं आपको बातें लिखवा भी दूंगी बिकॉज सुनने से आपको याद नहीं होगा, कल पेपर है, आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब ये जो बेस लाइन है इट्स ऑलवेज ड्रॉन विद पेंसिल। वाई इज इट ड्रॉन विद पेंसिल? बिकॉज इंक तो इट्सेल्फ एक मिक्सचर ऑफ डाइज है। अगर मैं ये इंक से ड्रॉ कर दूं, मैं पेन से ड्रॉ कर दूं, पेन में इंक होती है, तो ये लाइन खुद ऊपर मूव करने लग जाएगी, ये सारा स्मज हो जाएगा, पूरी इंक ऊपर नीचे फैल जाएगी। समझ आई? तो मैं इंक से ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि फिर मेरी क्रोमेटोग्राफी पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इंक खुद ही सेपरेट आउट होने लग जाएगी। तो फिर ये मेरा जो अगर फंक्शन में फ्रूट जूस का क्रोमेटोग्राफी कर रही है, मेरा फ्रूट जूस का स्पॉट है, तो फ्रूट जूस सेपरेट होगा, साथ साथ ये जो इंक से लाइन लगाई होगी वो भी सेपरेट आउट खुद ही होने लग जाएगी, वो भी ऊपर मूव करने लग जाएगी। मैं ये नहीं चाहती। पेंसिल इज इनसॉल्युबल, पेंसिल डिजॉल्व नहीं होगी, तो फिर ये लाइन मूव नहीं करेगी और ये सिर्फ स्पॉट ऊपर मूव करेगा। और जैसे जैसे ये स्पॉट ऊपर मूव करेगा, इसमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज हैं। रेड वाला बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो रेड फुल ऊपर तक मूव कर जाएगा, यहाँ पे रेड आ जाएगा। ब्लू वाला थोड़ा कम सॉल्युबल है तो यहाँ तक ब्लू सिर्फ ट्रैवल करेगा। तो ऑन द बेसिस कि उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज हैं वो सारे सेपरेट आउट हो जाएंगे एंड आई विल गेट अ कलरफुल पेपर लाइक दिस। ये बात But आप लोग को why समझ आई is है? it colorful? इट्स कलरफुल बिकॉज देखो, मैंने ये इंक कैसे बनाई है, मैंने ये ब्लैक कलर की इंक कैसे बनाई है,
इनिशियली मैंने इसमें रेड इंक डाली, मैंने इसमें ग्रीन इंक डाली, और मैंने इसमें ब्लू इंक डाली। रेड ब्लू ग्रीन से मिलके ये वाली इंक बनी। ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन से मिलके ये वाली इंक बनी। अब दैट वॉज मेड इन द फैक्ट्री, आई डेंट नो कि ये किस तरह बनी। मैं घर आई, मैंने सोचा लेट्स फाइंड आउट ऑल द dyes that are present inside the ink. I took a suitable solvent which could dissolve this ink. That was ethanol. I took a beaker like this, I put ethanol in it, I drew a line with my pencil, I put the spot of ink, then I put my paper inside the beaker. उसके नीचे मैंने 1 सेंटीमीटर जो है above the लेवल ऑफ सॉल्वेंट अपनी बेसलाइन को प्लेस किया। ओवर टाइम ये सॉल्वेंट ने ऊपर ट्रैवल किया, उससे क्या हुआ, ये जो स्पॉट था ये भी ऊपर ट्रैवल किया, और जितने भी सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट थे वो सेपरेट आउट हो गए क्योंकि उनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटीज थी। रेड जो था उसकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी थी, ग्रीन की डिफरेंट सॉलिबिलिटी थी, ब्लू की डिफरेंट सॉलिबिलिटी थी, तो वो डिफरेंट जगह पे अलाइन हो गए पेपर पे। दैट्स वाई गॉट कलरफुल इमेज, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें जो इसमें थी वो सेपरेट आउट हो गई। सो दीज आर द थ्री डाइज दैट वर प्रेजेंट इन दिस ब्लैक इंक। ठीक है। Yes. अब इतना आसान था ये, देखो। अब मुझे पता करना है कि व्हाट्स प्रेजेंट इन दिस इंक स्पॉट। सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। व्हाट विल आई आई टेक अ पेपर, आई पुट अ बेसलाइन ऑन इट। बेसलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसलाइन हम किससे बनाते हैं, ये एग्जामिनर पूछता है। Pencil. पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, पेंसिल से बेसलाइन बनानी है। उससे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। अब हानिया आप मुझे आके बता दो कि किस तरह ये सेपरेट आउट होगा। The water will go on the यस paper यस and it'll rise up, and with that यस, the ink will also राइज अप। rise up, and the components will be separated. Excellent, excellent. The components will be separated. And why do they separate out? सारे components एक जगह पे क्यों नहीं आते? Because different components, they have different solubility in the solvent. Some are very soluble, they will travel up. Some are less soluble, they'll travel only till this spot. Every component that's present has a different solubility. So that's why they separate out. अब देखो, मेरी ये इंक है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है। दिस इज माई अननोन कलरिंग। अच्छा, मैं इंक नहीं ले रही, मैं कलरिंग ले रही हूँ। दिस इज माई अननोन कलरिंग, दैट्स यू। अब मैं क्या करती हूँ, आई नीड टू नो दीज आर थ्री सब्सटेंसेज इस कलर के दैट आर इलीगल। ठीक है, दीज सब्सटेंसेज आर इलीगल टू यूज। आई गॉट माई कलरिंग, आई बिलोंग टू द अथॉरिटीज और समथिंग। ठीक है, आई वॉन्ट टू चेक कि अब इस सब्सटेंस में ये 4 सब्सटेंसेज हैं जो इलीगल है। कहीं ये 4 इलीगल सब्सटेंसेज प्रेजेंट तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं क्रोमेटोग्राफी रन करूँगी इन 4 सब्सटेंसेस की भी और इस अननोन सब्सटेंस की भी। मैंने नीचे अपना सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे ड्रॉ की बेसलाइन, बेसलाइन के ऊपर अपने सारे स्पॉट्स रख दिए। अब मुझे पता है ये सारे जो हैं ये प्योर चीज़ें हैं, दीज आर ऑल प्योर। इनका सिर्फ एक एक स्पॉट बनेगा। फॉर इंस्टेंस रेड वाला जो है वो ट्रैवल किया यहाँ तक। ठीक है, रेड स्पॉट यहाँ तक ट्रैवल हुआ। अब ये रैंडम है, क्रोमेटोग्राफी है। येलो स्पॉट यहाँ तक ट्रैवल हुआ, ग्रीन स्पॉट यहाँ तक ट्रैवल हुआ, और ब्लू स्पॉट यहाँ तक ट्रैवल हुआ। अब जब मैंने अपने इस सब्सटेंस की क्रोमेटोग्राफी की तो हुआ क्या, मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट था अननोन सब्सटेंस की क्रोमेटोग्राफी में। अब मुझे बताओ इसमें कौन से इलीगल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। Yellow or green? येलो और ग्रीन, सिंपल। इसी तरह आपकी फूड अथॉरिटीज आपके किस तरह आपके जूस वगैरह का टेस्ट करती हैं, इसी तरह यहाँ पे जूस का स्पॉट रखती हैं, यहाँ पे इलीगल स्पॉट्स रखती हैं, उनका चेक करती हैं, और आप देखती हैं आपके जूस में कौन कौन से उनमें से इलीगल स्पॉट्स प्रेजेंट हैं। आपको ये इतनी फॉर ज्यादा इंस्टेंस, इलीगल चीजों के बारे में कैसे पता है? यू शुड ऑलवेज हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, लेकिन ये ये पेंसिल लाइन है, ओरिजिन है। आपके पास ये नॉन कलरिंग्स थी A to D, इनका आपको नॉन थी, ये पता था कि ये नॉट अलाउड है।
और ये आपको पता था, आपने चेक करना था इसमें कहीं कोई नॉट अलाउड चीज़ तो नहीं है। आपने सिंपल क्रोमेटोग्राफी की, यू फिगर्ड आउट द डाइज दैट वर प्रेजेंट। अब क्रोमेटोग्राफी के 2-3 पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ, ये याद कर लेना कि सबसे पहले दैट योर बेस लाइन वाई इट हैज़ टू बी अबव द लेवल ऑफ योर सॉल्वेंट। वाई बेस लाइन अबव लेवल ऑफ सॉल्वेंट बता दो प्लीज़। वाई And the level of water is called the solvent front. सॉल्वेंट फ्रंट हम उस पर भी आ रहे हैं, वो मैं आपको आर एफ वैल्यू में सिखाती हूँ, बस 2 मिनट ये बेसलाइन वाली चीज़ देख लो। वाई बेसलाइन अबव, बिकॉज दिस इज योर बेस लाइन। ये वाली बेस लाइन जो है ना, इसको इस वाटर या सॉल्वेंट के अबव रखना है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। वरना क्या होगा कि ये सारे डाइस तो सॉल्युबल हैं, ये पहले ही अगर यहाँ तक ले लोगे ना वाटर, तो ये सारे जो है ना इस पेपर से उतर के वाटर में या फिर जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें सारे डिजोल्व हो जाएंगे। तो बेस लाइन को हमेशा अबव रखना है इस सॉल्वेंट लेवल से। अच्छा, वाई बेस लाइन अबव लेवल ऑफ सॉल्वेंट so that the dyes doesn't dissolve. So dyes, 8 minute. बिकॉज आई नो ये सवाल आते हैं, अभी पास्ट पेपर्स हम करने लगे उसमें भी आएंगे। वाई बेस लाइन ऑलवेज ड्रॉन विद अ पेंसिल, इसका मुझे बता दो, जल्दी बता दो। अगर इंक से करेंगे क्या हो जाएगा? That will It will also dissolve. rise, it will go up इट विल on ऑल्सो the गो अप। paper. तो पेंसिल से इसीलिए करते हैं सो दैट द बेस लाइन डज नॉट स्मज, इट इज़ नॉट स्मेयर, बिकॉज पेंसिल इज इनसॉल्युबल। ये मार्किंग स्कीम का आंसर है, मैं आपको एग्जैक्ट वहीं से ही लिखवा रही हूँ, इसी पे ही एग्जामिनर मार्क्स देता है। सो द बेस लाइन डजंट स्मज। Smudge as pencil is insoluble। चलो ये हो गया। अब हम अगली चीज पे आ जाते हैं, वो है हमारी आर एफ वैल्यू। आर एफ वैल्यू मैं आपको पास्ट पेपर से करा देती हूँ। Also in our paper, these यस। like graphs will not be colored. They're only gonna be black. हाँ, मैं आपको ब्लैक So का भी बताती हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। ये लो, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ग्रास। ये ग्रास है, ये मेरी पिगमेंट्स हैं, WXY। मैंने क्रोमेटोग्राफी की, मैंने कैबेज लिया, कैबेज का ऑब्वियसली क्रोमेटोग्राफी के लिए मैं यहाँ पे सॉलिड कैबेज नहीं रख सकती। सो फर्स्ट आई ग्राइंड द कैबेज। ठीक है, मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड किया, कैबेज का वो लिक्विड पेस्ट बनाया, उसका एक ड्रॉप इधर रखा। ग्रास को ग्राइंड किया, उसका एक ड्रॉप इधर रखा। स्पिनच को ग्राइंड किया, उसका एक ड्रॉप इधर रखा। और नीचे मैंने लेवल ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, ओवर टाइम इनकी क्रोमेटोग्राफी रन की। जब क्रोमेटोग्राफी इनकी ख़त्म हो गई तो मैंने अपना ये पेपर बाहर निकाल लिया। और अब मैंने देखा कि ग्रास में कौन कौन से डाइस प्रेजेंट हैं, कैबेज में क्या प्रेजेंट और स्पिनच में क्या प्रेजेंट है। देखो और बताओ मुझे, ग्रास में कितनी पिगमेंट्स हैं? 3. गुड, ग्रास में 3 पिगमेंट्स हैं और उन 3 का नाम क्या है? WXY. WXY. सिंपल, 3 स्पॉट्स आ रहे हैं इधर, तो आपने लिखना है कि इधर 3 पिगमेंट्स प्रेजेंट है, WXY। विच पिगमेंट इज इन ऑल प्लांट्स? इजी इजी पीजी And लेमन स्क्वीजी। एक्स इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। सिंपल, देखो एक्स कैबेज में भी है, एक्स ग्रास में भी है, एक्स स्पिनच में भी है। सिंपल। अब and कैलकुलेट द how आर will एफ। we explain this? हाउ विल यू? Explain this. विच पिगमेंट इज इन ऑल प्लांट्स, एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं हुई। No, in the first question. Explain your answer because you will tell it has 3 pigments and the explanation is going to be because it has 3 spots। अगर यहाँ पे मैं एक चौथा स्पॉट भी डाल दूँ मतलब 4 पिगमेंट्स हैं, पांचवा डाल दूँ मतलब 5 पिगमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन द क्रोमेटोग्राम, जब एक पेपर पे क्रोमेटोग्राफी हो जाती है और ऐसे कलरफुल स्पॉट्स आ जाते हैं तो आप उस पेपर को बोलते हो क्रोमैटोग्राम। ठीक है, दिस इज अ क्रोमैटोग्राम। द नंबर ऑफ स्पॉट्स
for a certain substance on the chromatogram tells you the number of pigments. इसमें अगर 3 स्पॉट्स है मतलब 3 पिगमेंट्स, 5 स्पॉट्स है मतलब 5 पिगमेंट्स। हर पिगमेंट का एक डिफरेंट स्पॉट होता है, कोई भी दो पिगमेंट्स का सेम स्पॉट नहीं हो सकता। ठीक है, हर पिगमेंट का डिफरेंट स्पॉट होता है। तो इसमें कितनी पिगमेंट्स है स्पिनच में? 2. बिकॉज इट हैज 2 स्पॉट। सिंपल। कैबेज में सिर्फ एक पिगमेंट है और वो है एक्स, क्योंकि उसका सिर्फ 1 स्पॉट है। दिस मीन्स कैबेज इज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब उसमें सिर्फ एक ही पिगमेंट है, वो कोई मिक्सचर नहीं है, दो तीन चीज़ें मिक्स नहीं हुई हैं, इट इज़ प्योर। इससे हमें प्योरिटी भी पता चल जाती है कि चीज़ प्योर है कि नहीं। बट इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड कि प्योरिटी चेक करें। प्योरिटी हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से चेक करते हैं, बट इससे वैसे में पता चल सकता है कि कैबेज प्योर है, उसमें सिर्फ एक है। ग्रास प्योर नहीं है, वो दो तीन चीज़ों से मिल के बनी हुई है। अच्छा, विच पिगमेंट्स आर, ये हो गया। कैलकुलेट आर एफ वैल्यू ऑफ पिगमेंट आइमा, नहीं, आर एफ वैल्यू ऑफ पिगमेंट डब्ल्यू। अब आर एफ वैल्यू कैसे पता करते हैं? एक चीज़ होती है सॉल्वेंट फ्रंट। अब वो क्या होती है? अब यहाँ पे पहले हमने लिया था लेवल ऑफ सॉल्वेंट बिलो द बेस लाइन, इस तरह से। अब हमारे स्पॉट्स तो ऊपर ट्रैवल हुए थे, बट हमारा सॉल्वेंट जो हमने इनिशियली लिया था, ये वाला सॉल्वेंट जो ब्लू कलर से है, ये सॉल्वेंट भी तो पेपर पे ऊपर ट्रैवल हुआ होगा ना। जब ये स्पॉट्स ऊपर ट्रैवल हो रहे थे, ये सॉल्वेंट भी स्पॉट्स के साथ ही ट्रैवल हो रहा था। तो एट द एंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारा सॉल्वेंट जो हमने इनिशियली नीचे लिया था, ये नीचे सॉल्वेंट लिया था, ये भी यहाँ तक जो है टेक्निकल एरर। अच्छा, ये जो हमारा सॉल्वेंट है, जो भी हमने लिया था, वाटर ले लो, एथेनॉल ले लो, जिसमें भी ये वाला डाई जो है वो सॉलेबल हो, वो वाला सॉल्वेंट ले लो, वो सॉल्वेंट भी एक सर्टेन लेवल तक राइज हुआ था और स्पॉट्स भी एक सर्टेन लेवल तक राइज हुए थे। अब हम एक रेशो बनाते हैं बिटवीन सॉल्वेंट कितना राइज हुआ और हमारा एक सर्टेन स्पॉट कितना राइज हुआ। एक रेशो बनाते हैं सॉल्वेंट के राइज होने की और स्पॉट के राइज होने की। उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना स्केल लेते हैं। Do we have an option of scale here? Previously गुड नोट्स में थी, तो ये रही। ओके, वी टेक अ रूलर, वी चेक फ्रॉम द बेसलाइन। बेसलाइन से चेक करना है, इधर उधर से ना चेक करना, नीचे से नहीं चेक करना, बेसलाइन से। हम बेसलाइन से चेक करते हैं कि हमारा सॉल्वेंट कितना राइज हुआ है, सॉल्वेंट जो हमने नीचे लिया था। विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ये बेसलाइन है। बेसलाइन से ऊपर कहाँ तक राइज हुआ है सॉल्वेंट? 6. Wait. 6.5. 6.5, 6.5 तक हमारा सॉल्वेंट राइज हुआ है। ठीक है, तो हम रेशो बनाएंगे। नीचे हम लिख देते हैं सॉल्वेंट कितना हुआ है, इजी। ऊपर हम देखते हैं कि हमारा जो डाई हम ले रहे हैं, डाई के सेंटर से हम देखते हैं डाई कितना राइज हुआ है। ये ग्रीन वाला डाई कितना राइज हुआ है? 5.4. 5.4, इजी। देखो ऊपर लिख देंगे 5.4। डाई कितना राइज हुआ है? दैट्स गोना बी अबव डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सब्सटेंस। नीचे होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। जितना डिस्टेंस सॉल्वेंट ट्रैवल करता है उस लाइन को बोलते हैं हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है। नीचे वो लिखेंगे, दोनों का रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। 5.4 डिवाइडेड बाय 6.5, 5.4 डिवाइडेड बाय 6.5, 0.8। 0.8 इज गोना बी माई आर एफ वैल्यू। सिंपल। नीचे क्या लिखना है? सॉल्वेंट का डिस्टेंस। ऊपर क्या लिखना है? जो डाई होगा उसका डिस्टेंस। अब हर डाई का अपना डिस्टेंस है यार। देखो, इस वाले डाई का अपना डिस्टेंस होगा, इस वाले डाई का क्या है? अगर मैं जीरो से देखूं, बेस लाइन से, इस वाले डाई का क्या है? 1. 2. Zero Wait. point sub 0.8 तक। 0.8. 0.8. इसका 0.8 है, तो इसका अगर मुझे आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगी ऊपर 0.8, नीचे सॉल्वेंट फ्रंट तो सेम ही रहेगा ना, सॉल्वेंट ने तो 6.5. ऊपर 6.5। 0.8 डिवाइडेड बाय 6.5 इज गोना बी माई आर एफ वैल्यू फॉर दिस। अब इसी तरह यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द आर एफ वैल्यू फॉर पिगमेंट डब्ल्यू। डब्ल्यू किधर है? ये डब्ल्यू है। आई एम गोना गेट माई रूलर। बेस लाइन से कैलकुलेट करना है। ये बच्चे गलती करते हैं, फुल नीचे से शुरू कर देते हैं यहाँ से। इसको तो 90 करें, यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से नहीं करना, ऊपर बेस लाइन पे अपना जीरो अलाइन करना है।
W क्या है, कितना है W का, और सॉल्वेंट फ्रंट का कितना है? 5.1. 5.1 क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट, यस इसका है Yes. 5.1। और ऊपर W का लिखना है, वो कितना है, ऑलमोस्ट 3 तक है, Okay. राइट। 3 डिवाइडेड बाय 5.1 इज गोना बी माई RF वैल्यू। और ये एग्जामिनर को दिखाना है कि आपने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे लिखो सॉल्वेंट फ्रंट, यहाँ पे आप लिख दो, उसको बताना है कि आपको ऐसे नहीं आया, उसको सारी वर्किंग्स दिखानी होती हैं 2 मार्क्स के लिए। अगर आप खाली यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 5.1 का आंसर, एक सेकेंड निकाल के मैं आपको बताती हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 5.1 आंसर आ रहा है 0.6, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर दिया मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक। 0.6, अगर मैं खाली यहाँ पे लिखाऊंगी 0.6 तो मुझे इसका 1 मार्क मिलेगा। आंसर के मार्क्स नहीं होते हैं, उसको बताना होता है सॉल्वेंट फ्रंट मतलब सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया था, 5.1। और डिस्टेंस ट्रैवल बाय सब्सटेंस, यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सब्सटेंस जो भी था वो 3 था। और फिर दिखाओ दोनों को डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाय 5.1 और आंसर है 0.6। मिल गई। विच ऑफ द प्लांट कंटेन्स पिगमेंट W, बता दो प्लांट्स के नाम जिसमें W है। ये W है, Grass and spinach. Grass and spinach. ग्रास एंड स्पिनच, देख लो कितना आसान है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। A student wants to separate a mixture of dyes that the dyes in the mixture can be identified. छोड़ो, the student also tests the dyes A B C D। अब ये मिक्सचर ऑफ डाई है जो वो चेक करना चाहता है। ABCD का उसको, उसने साथ चेक करना है कि ABCD की भी कोई वैल्यू आएगी रैंडम। वो चेक करना चाहते हैं कि इन मिक्सचर ऑफ डाइज में कहीं ये वाले तो नहीं प्रेजेंट, जो मैंने आपको बताया था कि इलीगल सब्सटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्रोमेटोग्राफी अपने अननोन सब्सटेंस के साथ कर देते हैं। इलीगल की देखते हैं उसने कहाँ तक ट्रैवल किया, अपने नोन की देखते हैं कहाँ तक ट्रैवल किया है। अगर नोन सब्सटेंस ने और इलीगल सब्सटेंस ने एक जितना ट्रैवल किया मतलब नोन में भी इलीगल प्रेजेंट है। अच्छा, नेम द प्रोसेस द स्टूडेंट यूजेस, ये कौन सा प्रोसेस स्टूडेंट यूज कर रहा है? Chromatography. क्रोमेटोग्राफी। द apparatus shown in the diagram is set up incorrectly, इसमें एक इनकरेक्ट चीज है, उसको बता दो कैसे करेक्ट करेंगे, देखो। The, the solvent is एक्सेलेंट the एक्सेलेंट। solvent is very high. अबव द बेसलाइन, ये बेसलाइन है, इससे ऊपर सॉल्वेंट है। अब होगा क्या कि क्योंकि सॉल्वेंट अबव द बेसलाइन है, और मैंने बताया था ये सारे डाइज जो हैं ये सारे इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, तो ये पेपर से उतर के सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे। इंस्टेड के ऊपर ट्रैवल करें, अब सॉल्वेंट यहाँ तक है, इतना ऊपर है सॉल्वेंट, तो सारे खुद ही सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे। समझ आई? और क्रोमेटोग्राफी होएगी ही नहीं। सो द प्रॉब्लम ओवर इन द apparatus इज दैट द सॉल्वेंट लेवल is above the baseline. It should be 1 centimeter below the baseline. समझ आई हानिया? Yes. चलो जल्दी शुरू करते हैं। अब उसने क्रोमेटोग्राफी की, ये उसका रिजल्ट आया है। ओके, द apparatus is then set up correctly, the solvent travels up the paper। उसने अपना सही कर लिया apparatus, मतलब सॉल्वेंट लेवल को नीचे ले आया, क्रोमेटोग्राफी हो गई, रिजल्ट्स ये हैं। विच ऑफ द डाइज ABCD आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ डाइज, इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, जल्दी देख के बता दो। A, C, and B. अच्छा, A प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, डी नहीं प्रेजेंट है ना। डी तब प्रेजेंट होता Yes. जब यहाँ पे भी एक स्पॉट होता, डी का स्पॉट नहीं है। सो इट्स गोना बी ए सी एंड बी। अच्छा, अगला है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द बेस लाइन एंड द सॉल्वेंट फ्रंट, द बेस लाइन एंड पोजिशन ऑफ ए। अच्छा, तो अब ए और सॉल्वेंट फ्रंट का वो निकलवाना क्या चाह रहे हैं, RF वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं किसकी, ए की। सबसे पहले सॉल्वेंट फ्रंट देखें क्या है, 6 पॉइंट समथिंग है, कितने सेंटीमीटर्स है, 6.1. 1। ठीक है, 6.1 आ गया सॉल्वेंट फ्रंट। अब ए का बता दें कितने हैं? ये लो 1.5 तक है, 5 तक है ना, 1.5 कर लो। एग्जाम में ज़रा इतने कैजुअली ना करना, प्रॉपरली देख के करना।
इसका है 1.5 सेंटीमीटर, इसका है 6.1 सेंटीमीटर। RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए की। ऊपर लेंगे डिस्टेंस दैट वाज ट्रैवल्ड बाय ए 1.5, ये ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था ये था 1.5। नीचे लेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, टोटल ऊपर तक सॉल्वेंट फ्रंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था, दैट वाज 6.1। इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 6.1, RF वैल्यू आ गई 0.225, 0.25। इजी। अगला, Yes, अगला आ जाओ। Suggest why the initial line is drawn in pencil and not ink. because graphite is does not ग्राफाइट ना लिखना, नहीं नहीं ग्राफाइट ना लिखना, सिंपल लिखना, बिकॉज ink पेंसिल is इज इनसॉल्युबल। soluble in water. अभी हमें तो नहीं पता, हमने नीचे वाटर लिया है, No, इथेनॉल लिया है, is क्या लिया है? because pencil is like पेंसिल विल insoluble स्मज, पेंसिल विल नहीं, बिकॉज इंक विल Ink will स्मज, सॉरी, smudge. इंक because विल अच्छा स्मज, पेंसिल विल नॉट स्मज। इंक तो स्मज हो जाएगी, खुद ही उसकी क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी, पूरा पेपर खराब हो जाएगा इंक से। because अगर एक बात सुनो, एक पेपर है उसके ऊपर आपने इंक से लिखा हुआ है और एक पेपर ऊपर पेंसिल से लिखा है, दोनों के ऊपर पानी गिर जाता है, तो इंक वाला पेपर खराब हो जाता है, उसकी इंक सारी स्मज कर जाती है। पेंसिल वाला पेपर, पेंसिल दो पेपर खराब हो जाते हैं बट पेंसिल स्मज नहीं करती। समझ आई? तो इंक से हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लिक्विड इन्वॉल्व है। अच्छा, because ink will smudge and pencil is insoluble, pencil is better. Okay, draw a line on the diagram of the chromatogram to show the depth of the solvent into which the paper is placed. अब हमने बताना है कि हमारे सॉल्वेंट की क्या डेप्थ होगी। अब आप लोग मुझे बताएं, ये हमारा बीकर है फॉर इंस्टेंस, अब मैंने इसमें जो सॉल्वेंट लिया उसकी क्या डेप्थ होगी? बता दें सॉल्वेंट किस डेप्थ तक लेते हैं? 1 centimeter below. 1 Below the सेंटीमीटर बिलो, इसके बिलो लेना है, ये हमारी बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, इसके हमेशा नीचे सॉल्वेंट लेना है। अगर आप यहाँ पे ऊपर सॉल्वेंट बना देंगे वो गलत हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी नहीं होगी। नीचे सॉल्वेंट लेंगे तभी स्पॉट जो है वो ऊपर ट्रैवल करेगा, वरना स्पॉट खुद ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इसको छोड़ दें। सजेस्ट अ रीजन वाई ओनली 3 स्पॉट्स आर डिटेक्टेड ऑन द फाइनल क्रोमेटोग्राम। सिर्फ 3 स्पॉट्स क्यों आए हैं? because there's three components in the Yes, because there are only 3 type of components or substances or pigments present in this dye. जितनी pigments होंगी उतने ज़्यादा spots आएंगे। अगर 3 spots आ रहे हैं मतलब इसमें सिर्फ यही 3 चीज़ें present है। ठीक है, हो गया ये भी simple। Okay, we are done। नहीं नहीं, एक और चीज़ है मुझे। The RF values of some amino acids in the solvent are used in this experiment are shown। ये कुछ RF values हैं। State how an RF value is calculated। Simple, distance traveled by the solvent front, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्पॉट करना है, और फिर फॉर्मूला लगा देना है। ऊपर आना चाहिए डिस्टेंस कौन सा, ऊपर कौन सा distance of the डिस्टेंस, spot. स्पॉट को हम